أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان محترم سامعین حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہے ہمارے بزرگ محترم قاری عبدالرحمن تبسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ دینی جذبہ رکھتے ہیں اور ان کی چاہت ہے کہ ہر بندہ دین پہ چلنے والا بن جائے۔ اسی جذبے سے انہوں نے آج کا یہ پروگرام تشکیل دیا، ہم سب کو یہاں دین کی نسبت سے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صاحبزادگان کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور طاقت اور وسائل عطا فرمائیں، وہ دین کی خدمت کریں اور اس خدمت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اس وقت جتنے حضرات شریک ہیں اس دینی مجلس میں، اللہ سب کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ چونکہ درس کا ماحول ہے تو درس کی ترتیب پر آپ کی خدمت میں کچھ رکھتا ہوں جس کا مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ عطا فرمائے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے دو جگہ پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ 22ویں پارے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ما کان محمد، سب کہہ دیں، محبت سے کہہ دیں، شوق سے کہہ دیں، ذوق سے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تین چیزوں کو بیان کیا۔ کتنی چیزوں کو؟ تین چیزوں کو۔ یہ میں باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو یاد کرنے والی ہیں۔ کون سی ہیں؟ یاد کرنے والی ہیں اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے
मा काना मुहम्मदुन, अल्लाह ने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया। नाम आपका क्या है? सल्लल्लाहु, क्योंकि आपका नाम आया है तो आपका थोड़ा सा तारुफ भी हो जाना चाहिए। मेरे और आपके आका व मौला, फख्र मौजूदात, सैयदुल बशर, फख्रुर रसूल, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम है मुहम्मद। आपके वालिद मोहतरम का नाम है अब्दुल्ला। ये साथ साथ याद करने वाली चीजें हैं। आपकी वालिदा का नाम है आमिना। आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके वालिद मोहतरम दुनिया से जा चुके थे। अल्लाह अकबर। गोया यतीम पैदा हुए। तो आप जानते हैं कि यतीम बच्चे को लोग पसंद नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, लोग उसकी कदर नहीं करते। लेकिन यहाँ देखिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को, कायनात में आप जैसा कोई हसीन नहीं है, कायनात में आप जैसा कोई महजुबीन नहीं है, कायनात में आप जैसी इज्जत किसी की नहीं है, लेकिन अल्लाह पैदा कर रहे हैं तो वालिद का साया सर से पहले उठा लिया। अल्लाह अकबर। तो आपके अब्बा मोहतरम, आपके वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला दुनिया से जा चुके हैं। तो आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका नाम क्या अल्लाह ने रखा? अभी तो बोला है, क्या नाम है? मोहम्मद। और इस आयत मुबारका में सबसे पहले अल्लाह ने आपका नाम लिया मोहम्मद, और आगे आपका काम बयान किया, वलाकिर रसूल अल्लाह। आपका नाम मोहम्मद है, काम रसूल है। आपका काम क्या था? रसूल किसे कहते हैं? डाकिए को। मैं आसान अल्फाज में बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। रसूल किसे कहते हैं? डाकिए को, पैगाम लाने वाले को, कोरियर सर्विस वाले को कहते हैं रसूल। और जो अल्लाह का पैगाम लाए उसे रसूल कहते हैं। अपनी बात नहीं होती, किसकी बात होती है? अपना मकसद नहीं होता, मकसद किसका होता है? तो अल्लाह का मकसद पहुंचाने वाले को, अल्लाह की बात लाने वाले को क्या कहते हैं? ये आपका काम बयान हो गया। और आपका मुकाम क्या है? आपका मर्तबा क्या है जी? खातमन नबीयीन। आपके सर पे अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज सजाया। एक आयत में अल्लाह ने आपका मुकाम भी बयान कर दिया, आपका नाम भी बयान कर दिया, और आपका काम भी बयान कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो रबीउल अव्वल है, ये आज पहली मर्तबा आया या पहले भी आता था? ये कब से आ रहा है? जब से दुनिया बनी है ना, तो अल्लाह ने ये निज़ाम चलाया। जब से दुनिया चली है तब से अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है, चलाया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि हमने महीनों की तादाद 12 रखी, और 12 में से तीसरे नंबर पे रबीउल अव्वल है। कौन सा नंबर है रबीउल अव्वल का? तीसरे नंबर पे। रबीउल अव्वल पहले भी आता था, लेकिन जब मेरे आका आए तो फिर इसे मर्तबा मिल गया। जब हमारे आका तशरीफ लाए तो इसे मुकाम मिल गया, इसे बुलंदी मिल गई। अब पहले वाला रबीउल अव्वल में और मेरे आका के रबीउल अव्वल में जब आप तशरीफ लाए तो फर्क पड़ गया। पहले रबीउल अव्वल आम था, अब खास हो गया। पहले आम था, अब मुकाम मिल गया, अब मर्तबा मिल गया। लेकिन ये मुकाम और मर्तबा मिला कब? ये मुकाम और मर्तबा मिला कब? मेरे आका पैदा भी इस माह में हुए, मेरे आका ने नबूवत का ऐलान भी इसी महीने में किया, हिजरत भी इसी महीने में की, और वफात और रहलत भी इसी महीने में हुई। गोया के 4 काम नुमाया जो सरेआम हर बंदे को नजर आते हैं, वो इसी माह मुकद्दस में, इसी माह रबीउल अव्वल में आका ने दुनिया में कदम रखा तो माह रबीउल अव्वल, आपने नबूवत का ऐलान किया तो माह रबीउल अव्वल, आपने मक्का को छोड़ा मदीना तशरीफ ले गए तो रबीउल अव्वल, आपने मदीना को छोड़ा और जन्नत में क़याम किया तो रबीउल अव्वल। लेकिन आपकी पैदाइश वाले रबीउल अव्वल में और नबूवत के ऐलान वाले रबीउल अव्वल में जमीन आसमान का फर्क है।
आपकी पैदाइश पर सब ने खुशी की। किसने खुशी की? सब ने। अपने थे, पराए थे, बेगाने थे, जो भी था उसने खुशी की। लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो फिर सब ने खुशी नहीं की, सब ने मुखालफत की। फिर साथ देने वाला वो फकत आपकी घर वाली थी, वो अम्मा खदीजा थी। उस वक्त सके चचा ने भी आपकी मुखालफत की, पत्थर मारा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बद्दुआ दी। अब ये जो रबीउल अव्वल आता है ना हर साल, ये किस लिए आता है? मुझे और आपको याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे आका ने कुर्बानी कितनी दी। तुम्हारे आका ने कुर्बानी कितनी दी है, ये हर साल रबीउल अव्वल आता है हमें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे आका ने कुर्बानी कितनी दी। ये हमें विलादत नहीं याद दिलाता, आका की कुर्बानी याद दिलाता। विलादत तो काफरों को भी याद है। कायनात में कोई आपकी विलादत का मुनकर है? आपकी विलादत का मुनकर ही कोई नहीं। ये आपकी कुर्बानी के मुनकर है, आपकी अजमत के मुनकर है, आपकी उलूव शान और बुलंदी के मुनकर है। अबू लहब ने क्या कहा था? अबू जहल ने क्या कहा था? नाउज़ुबिल्लाह, सरदारी चाहते हो? तुम्हें हमारी सरदारी बर्दाश्त नहीं होती? तो वो आपकी शान के मुनकर थे, हम आपकी शान का नारा लगाने वाले। लेकिन फकत नारों से काम नहीं, फकत नारों से काम नहीं चलेगा, आपकी सीरत अपनानी पड़ेगी। आपकी सीरत को अपनाना पड़ेगा। आपकी कुर्बानी देखिए कितनी है। मेरे आका कायनात में सबसे आला और अफजल है। जिसका ये ईमान नहीं है वो बेईमान है। मेरे आका कायनात में सबसे आला और अफजल हैं, आला और अकमल हैं, कामिल और मुकम्मल हैं। आप जैसा अल्लाह ने दूसरा कोई पैदा नहीं किया। सारे अंबिया मिल जाएं आपका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको इतना मर्तबा दिया, मुकाम दिया। अगर किसी का ये ईमान नहीं है तो वो बेईमान है, वो ईमान वाला नहीं है। लेकिन देखना यह है कि मेरे आका आए किस मकसद के लिए थे। मेरे आका तशरीफ किस मकसद के लिए लाए थे? जिस मकसद के लिए तशरीफ लाए थे उस मकसद पर आपने सिर्फ वक्त नहीं लगाया बल्कि अपना खून भी लगाया, अपनी जान भी लगाई है, अपना कुंबा, कबीला, इलाका, हर चीज कुर्बान कर दी है। लेकिन मकसद को नहीं छोड़ा, मकसद को नहीं छोड़ा। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो चावल पकाए, चावल मिलेंगे आपको लेकिन क्या आपके आने का मकसद चावल खाना है? क्या मकसद था? दीन की बात करना, दीन की बात सुनना। चावल तो मुफ्त में मिलेंगे ना साथ। मकसद क्या है? दीन की बात करना और सुनना। हम इस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए। तो आका दुनिया में तशरीफ लाए तो मकसद क्या था? अल्लाह का दीन घर घर पहुंचाना, कायनात के फर्द फर्द तक पहुंचाना और कायनात के इंसानों को समझाना, कायनात के इंसानों को समझाना। ये जो पूरे का पूरा कुरान है ना, आपके घरों में कुरान है? कभी खोला है? अल्लाह हमें खोलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और किसी साहब फाहम से समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे रब का पैगाम है, ये मेरे रब का और लाने वाले रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने इस कुरान को पहुंचाने के लिए तकलीफें कितनी उठाई, आपने मुशक्कतें कितनी उठाई, आपने मसाइब कितने झीले। आइए जरा तारीख और सीरत की किताबों को खंगालते हैं, उन्हें खोलते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब सीरत की किताब को हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी ने इस पैगाम को पहुंचाने के लिए, इस पैगाम को लोगों को देने के लिए पहले 40 साल लोगों की खिदमत की है। 40 साल बिला मुआवजा लोगों की खिदमत की है।
वेलफेयर के काम किए हैं, ट्रस्ट के काम किए हैं और बगैर नाम कमाए किए हैं। बगैर नाम कमाए किए हैं। जब आपको नबूवत अल्लाह ताला ने नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया ना, तो सबसे पहले आपने अपनी जिंदगी को सामने रखा। सबसे पहले क्या सामने रखा? जिंदगी का। और जब आप पर सबसे पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली 5 आयतें आपके ऊपर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, तो आप कांप रहे थे। आप कांप रहे थे, यूं जैसे सर्दी से बंदा कांपता है। और यूं कांपते कांपते आप अपने घर तशरीफ ले गए, जो असल में घर किसका था? अम्मा खदीजा का रजी अल्लाह ताला अन्हा। आज भी आप जाए ना, तो जो बुआबतुन नबी है, जो नबी अलैहिस्सलाम का वो हरम का दरवाजा है, उससे बाहर निकले तो इस तरफ उन्होंने अभी बाड़ लगा दिया है, नीचे उसके निशानात मिलते हैं। वहां अम्मा खदीजा का घर था, सफा मरवा से बाहर वाली तरफ। तो अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए, फिर तवज्जो कीजिएगा जरा। तो आप यूं कांप रहे हैं और आपकी जुबान पर क्या लफ्ज है? जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल दो, चादर दो, मुझे सर्दी कपकपाहट महसूस हो रही है। और साथ आपने यूं फरमाया कि मुझे लग रहा है जैसे मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। उठाइए बुखारी शरीफ, किताबुल वही। अम्मा खदीजा ने, अम्मा आयशा से रवायत है, अम्मा खदीजा ने क्या इरशाद फरमाया, क्या अर्ज किया? फरमाया अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे। कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह हरगिज़ आपको जाया नहीं करेंगे। क्यों जाया नहीं करेंगे? आप तो लोगों की खिदमत करते हैं। आप तो क्या करते हैं? लोगों की खिदमत करते हैं। और खिदमत करने वाले को अल्लाह जाया नहीं करते। 40 साल आपने लोगों की खिदमत की है। कभी बकरियां चराई हैं, कभी तिजारत करके खिदमत की है, कभी किसी बीमार की बीमार पुरसी करके खिदमत की है, कभी किसी के घर में खाना नहीं है तो कमाकर उसके घर में खाना पहुंचाया है कि लोग खाओ। और ये 40 साल मेहनत के बाद आपने अपना मकसद सामने रखा है, आपने अपना माटो सामने रखा है, आपने वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने कायनात के इंसानों को देना था वो सामने रखा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के पाक नाम से, वो बरकतों वाला नाम, वो रहमतों वाला नाम, उसके नाम से पढ़िए, उसके नाम से तिलावत कीजिए। और आज क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? वो ना मौलवियों ना की काम में इन मौलवियों ना कि इन मौलवियों का काम यह है कि तुम्हें अल्लाह से मिलाएं। किससे मिलाएं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तुम कायनात का कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे उस पाक रब के नाम से, वरना वो तुम्हें पढ़ने वाला फायदा, वो पढ़ा हुआ फायदा नहीं देगा। अगर उसके नाम के साथ पढ़ोगे, वो दुनिया की तालीम होगी तब भी फायदा देगी, वो दुनिया का कोई फन पढ़ोगे तब भी फायदा देगा। लेकिन पहले उसका नाम बुलंद करना है, पहले उसका नाम बुलंद करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इसके लिए कुर्बानियां कितनी दी आपने? आपने पत्थर खाए। क्या किया? पत्थर खाए। हमें को दीन के लिए पत्थर तो नहीं लगा। आपने दीन के लिए खून दिया, आपके जिस्म मुबारक से खून निकला, आपके दांत मुबारक शहीद हुए, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, बेटियों को तलाकें हुई। अल्लाह अकबर। ये वो बाप जिसने बेटी की शादी की है और फिर उसे तलाक हुई है, उससे पूछे कितना बड़ा सदमा है, उससे पूछिए। ये ऐसे नहीं पता चलता। आप में से किसी ने मैंगो खाया? जी, अक्सर तो नहीं बोलते जैसे नहीं खाया हो मुल्तान वालों ने ज्यादा खाए होंगे। तो मैं